So, okay, good morning to all. And today, you know that the last class is the Laplace transformation, and very basic class of the last class, the Laplace transform of the basic definition and some formula related to this Laplace transformation. And also the voltage and current transformation, that is the time domain and S domain. Means for the network analysis, the Laplace transformation, that is the time domain and S domain. So there are the three passive elements, you know that the resistor, inductor and capacitor. So what is the resistors across the voltage, current and their S domain, time domain analysis, and inductor also voltage, current, similarly capacitors. So last classes already these things are explained very clearly. So those who are absent, then just watch the YouTube channel. So now today we will discuss the transient analysis of electric circuit using Laplace transformation. So okay, the today topic is again very important topic. So write down the topic first, that is the transient analysis of electric circuit. And all are performed experiment also, that the transient analysis for the RC, RLC in your experiment. So I think all are you familiar with what is the transient, what is the meaning of transient. So transient analysis of electric circuit using Laplace transform. So what is the basic meaning of transient? What do you mean this transient? Okay, so transient, Aman Kumar, what is the meaning of transient? First thing, what is the transient? Transient response. In any electric circuit, what is the basic definitions of the transient? Anyone? In electrical, what is the meaning of this transient? What is the basic meaning of transient? Anyone? So you know that transient means generally in the electric circuit, that is when there is a switch on and off, and any there is sudden change in load or applied voltage, or there is short circuit in the circuit. You know that is the phenomena in electric circuit. This is the phenomena of transient analysis. Basically, suppose there is a disconnection and connected and disconnected means switch on and off from the supply, and also there is sudden change in the applied voltage. Okay, and also when there is the short circuit in the circuit. So these are the basic causes of the transient in the circuits, in the form in the case of just electrical network. So and this transient is basically for a very short time, So there is sudden change in rise in voltage, sudden rise in the current. So basically today we will focus on the transient analysis of like RL series circuit, RC series circuit, RLC series circuit, and RLC parallel circuit also. And which type of supply is given, means input supply. There is the step input, there is the impulse input. So different types of input is given to the circuit, and then we just check their time constant. So what is the meaning of this time constant? So basically time constant represent what? The speed of the response of circuit. How fast the response in the circuit. This is basically a speed of the response of a circuit. This is called time constant. So today we will derive by using simply Laplace transformation the time constant. This is a very important class. Okay, time constant by using Laplace transformation. By using what? Laplace transformation. Okay. Okay. So transient basic meaning is clear. Now first topic,
transient analysis for the RL series circuit. Okay, the first topic is transient analysis for the RL series circuit. Mamta Kumari, what is the time constant for this RL series circuit? What is the time constant for this RL series circuit? What is the time constant? What is the formula for the time constant? Mamta Kumari, what is the time constant? Tell me. What is the time constant? Harsh Raj. Already you have performed that experiment in your experiment, network theory experiment, network theory laboratory. In that case also there is a time constant for the RL, RLC. So what is the formula for this time constant? Tell me anyone. Aman. Just tell me. What is the time constant? No one have idea. Priti Kumari? Yes, sir. What is the time constant formula for this RL circuit? L by R. Tau is equal to L by R. This is the time constant. Okay. This is the time constant. Now see here, this is the RL series circuit. RL series circuit. Okay. So see here, one of the switch is connected here. This is the switch. So when switch is closed means that T is equal to 0. Now voltage across the RL. Simply just apply here KVL. Okay. So there is the conditions when T that is equal to or less than 0. It means that switch is closed. So now for the now applying KVL here for the step input. The input is here step input. Okay. Step input. The here see the transient analysis for the RL series circuit circuit with step input step input supply is here step pulse. Okay. So now I apply KVL. So suppose this is the VT, time response VT. So now I apply KVL, then R IT, this is the time domain, okay, plus L di by dt, di, this is T, dit dt, okay, and the voltage is that is V, but in step input is here. This is the step input, okay, U. Already in the first class I have explained a step pulse, step input. So what is the Laplace transform for the step? What is the Laplace transform of the ramp? So many cases, already formulas are given in the last class. So now here, taking the Laplace transform of this one, okay. Taking the Laplace transform. तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना डिफरेंशिएशन के केस के लिए क्या करते हैं, सारा केस मैंने बताया वो लास्ट क्लास में. टेकिंग लैप्लेस ट्रांसफॉर्म तो क्या होगा, इसमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे तो IT तो सिंपल R, इसके केस में क्या हो जाएगा IS प्लस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यदि हम लोग DI बाई DT का करते हैं तो क्या था, याद करो क्या था, S IS माइनस जो इनिशियल कंडीशंस के लिए ले रहे हैं इज इक्वल टू V, और स्टेप इनपुट के लिए क्या होता है 1/s, दैट इज V/s.
सो ये लैपलेस ट्रांसफॉर्म यदि लास्ट क्लास में किए हो तो ये एकदम बहुत इजी है, आपको समझ में आना चाहिए कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म बहुत बेसिक, ठीक ना। सो यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ तक, ठीक है। तो ओके, सो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग को यहाँ पर निकालना है करंट के फॉर्म में, इसको निकालेंगे, ठीक है, करंट के फॉर्म में। सो आर आई एस, जहां जहां पर है आई एस को हम लोग यहाँ पर कॉमन निकाल लेंगे, और आई जीरो जो है यहाँ पर, जो आई जीरो देख रहे हैं ये आई जीरो, तो ये आई जीरो एक्चुअली क्या है हम लोग, इनिशियल वैल्यू ऑफ द करंट विच इज जीरो। हियर सिंपली आई जीरो इज व्हाट, दिस इज द इनिशियल वैल्यू, आई जीरो इज व्हाट, जस्ट a minute, I0, this is what? This is indicates the information regarding what? The initial value of the current. The initial value of current which is zero, simple. Okay, so just simplify this equation, this one. Okay, so how to simplify? Simple V by S. So here see, I0 is 0, means RIS plus SLIS is equal to V by S, okay. So now find out the common out, taking the just common, IS is equal to R plus SL is equal to V by S, okay. So here IS is equal to, find out V by S, just wait, V by S. So just taking common from here, IS is equal to L, so SL, just a minute, 1 minute, S, यदि S को कॉमन निकाल लेते हैं, IS S, एक मिनट, इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, ये V हो गया, 1 मिनट, V S, इसको R by L लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, S और ये L, एक मिनट, ये L, इसको इस तरह से लिख सकते हैं V by S. So IS is equal to, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं V by L S F plus R by L, ओके. देखो सिंपल S को उधर ले गया मैंने, V by L को उधर लिया, तो V by L S plus R by L, कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं IS को, करंट को, V by L S F plus RL, okay. Now you know the partial fraction, so by using simply partial fraction, just using partial fraction, simplify this one. तो partial fraction लगाने पर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिंपल A और B मान लेते हैं, तो A by S, partial fraction का रूल पता होगा सबको, B by S plus, इसको partial fraction में हम लोगों ने ब्रेक कर दिया, so B S plus R by L, so IS is equal to A by S और B S plus RL, ठीक है. तो आप partial fraction से A और B का वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं. Now applying the partial fraction, simply just to find out the value of A and B, का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, सिंपल इसको कॉमन निकालते हैं. पार्शियल फ्रैक्शन सबको पता होना चाहिए, S plus R by L, now this is A S plus R by L plus B S, ठीक है.
ये नीचे वाला तो कॉमन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं वेयर a इज इक्वल टू, देखो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v बाय l, ध्यान देना, ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और v बाय l यहां पर यदि हम लोग निकालना रहेगा v बाय l s इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। a एंड b का वैल्यू को फाइंड आउट करो, कितना आ रहा है, v बाय l डिवाइडेड बाय s प्लस r बाय l, पुट करना होगा s इक्वल टू 0, तो ये आएगा v बाय l, v बाय l नहीं आएगा, ये l कैंसिल हो जाएगा, फिर v बाय r आएगा, ठीक है, v बाय r, l कैंसिल आउट, v बाय r। सो a का वैल्यू क्या आ गया, v बाय r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a हियर, v बाय r। नाउ सिमिलरली b इज इक्वल टू v बाय l, v बाय l s, और ये इस केस में s इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, माइनस r बाय l, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन आता है ना सिंपली, जैसे एबीसीडी का हम लोग एक्स वाई वैल्यू निकालते थे एबीसी इंटीग्रेशन के केस में, वही मैं कर रहा हूँ बस, यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन जैसे निकालते हो वैसे ही निकालना है। सो माइनस v बाय r, क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर एलसीएम लेकर के बना दूंगा, कि कुछ नहीं है यहाँ पर, क्या करना है, ये करना है, फिर s इक्वल टू 0 पुट करेंगे एक बार, तो फिर हम लोग का निकलेगा, फिर हम लोग को s इक्वल टू माइनस r बाय l, मतलब क्या करते हैं, एक बार a को 0 करते हैं, एक बार b को 0 करते हैं, यही ना करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। तो ठीक है, क्लियर है यहाँ तक ममता कुमारी? यस सर। पार्शियल फ्रैक्शन में कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को यहाँ तक, जो वैल्यू निकालो, a का वैल्यू b का वैल्यू, ठीक है? नो सर, कोई ठीक है, क्योंकि हम लोग जब a को निकालते हैं तो b को 0 करेंगे, b को निकालेंगे तो a को 0 करेंगे। सो a एंड b, a और b का वैल्यू हम लोग के पास आ गया है, ठीक है। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस a एंड b हियर, दिस हियर, ओके। सो 1 मिनट, नेक्स्ट पेज। तो हम लोग का क्या है, आई एस इजिकल टू, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं आई एस इजिकल टू, आई एस इजिकल टू, आई एस इजिकल टू, अब सिंपली ए का वैल्यू को पुट करेंगे ई बाय आर, ई बाय आर तो क्या हो जाएगा, मतलब नहीं सॉरी वी बाय आर, वी बाय आर डिवाइडेड बाय एस, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस वी बाय आर, और ये नीचे में क्या था, एस प्लस आर बाय एल, सी एल, दिस वन, A and B, just substitute here A and B, so IS become like that, IS V by RS plus minus V by RS plus R by L, okay, clear? Now just taking the inverse Laplace transform, taking inverse Laplace, okay, Laplace transform, is taking an inverse Laplace transform, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो क्या होगा इसका एक्सप्रेशन, सबको पता होगा इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, v बाय आर माइनस v बाय आर और f प्लस आर एल, तो e माइनस आर एल, ये t देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर v बाय आर को हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस e minus r by l, this is t, I and t is equal to v by r, 1 minus e c l minus r by l and t, simple. So this is what, this is the expressions for this transient analysis for the RL series circuit. But now see here, R by L, what is here R by L? So write down one by one for these conditions, like suppose now time t is equal to here tau, we just consider here time constant, that is tau, that is L by R, this is time constant,
tau is equal to L by R. Tau is equal to L by R. So see here, this is the final expression. IT is equal to V by R, 1 minus E minus RL by T. Okay, this is clear or not? Clear na? Now suppose at a time, suppose T is equal to tau. T is equal to tau. Then what is the current? What is the current here? So current V by R, T is equal to tau means T by tau means 1 minus E minus 1. Okay? Because R by L na, so L by R, so T by tau and T is equal to T. So E minus 1. So E minus 1 का वैल्यू कैलकुलेटर से यहाँ इसको फाइंड आउट करो. 1 minus E, 1 by E का वैल्यू, 1 by E का वैल्यू, E minus 1 मीन्स मतलब क्या होता है 1 by E और 1 से माइनस करो तो देखो ये इतना आएगा 0.63. ओके, 0.63 V by R, ये इतना आएगा मीन्स 0.63 और ये V by R मीन्स करंट, स्टडी करंट. ठीक है, सो I इज इक्वल टू, जब टाइम T इज इक्वल टू टाउ होगा तो 0.63 IS. ठीक है, देखो एक बार अच्छे से, कोई डाउट है तो. ये एक्सप्रेशन लैपलेस ट्रांसफॉर्म का यूज करके हम लोग आरसी नारल सर्किट के लिए जो है कि हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस कर रहे हैं. इसमें टाइम कांस्टेंट हम लोग टाउ इज इक्वल टू L by R आया. ठीक है, तो यहाँ पर क्या समझे हम लोग, टाइम कांस्टेंट को हम लोग कैसे डिवाइड किया, कैसे कर सकते हैं. बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे हम लोग स्विच को क्लोज करते हैं, व्हेन नाउ स्विच इज क्लोज्ड, देन व्हाट विल हैपन, द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर विल इमीडिएटली जंप टू देयर battery voltage, okay, means open circuit and decay down to 0 over time के साथ में फिर वो क्या होगा, decay करेगा. Okay, so simply voltage across the inductor is simply determined by R, voltage drop across R, जो करंट फ्लो कर रहा है उससे हम लोग निकाल सकते हैं. तो स्विच को क्लोज कर रहे हैं तो करंट 0 हो गया, देन इंक्रीजेज ओवर टाइम, धीरे धीरे करंट इंक्रीज कर रहा है. ठीक है, सो एक्सपोनेंशियली राइज. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो टाइम कांस्टेंट निकल गया क्या, L by R. तो टाइम कांस्टेंट को बेसिकली हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट, डेफिनेशन ऑफ व्हाट, टाइम कांस्टेंट. एक्सपेरिमेंट भी हो चुका है, अभी क्लास के बाद और क्लियर हो जाएगा. तो डेफिनेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट क्या बोल सकते हैं यहाँ पर हम लोग टाइम कांस्टेंट का डेफिनेशन को. सो इट इज द, सिंपली इट इज द टाइम टेकन, it is the time taken for the current to reach 63% of its final value. तो इससे क्या पता चल रहा है कि thus it is a measure of the rapidity, मतलब how fast, rapidity with which the steady state is reached. सिंपल था इंग्लिश. और यदि हम लोग फिजिकली बात करते हैं, फिजिकली टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या हो रहा है, फिजिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम कांस्टेंट, फिजिकली तो फिजिकली टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो फिजिकली टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट, सब जानना जरूरी है, रिप्रेजेंट्स the speed of the response, of a circuit.
फिजिकली हम लोग टाइम कांस्टेंट का मीनिंग यही समझते हैं, बहुत ही क्लियर, ठीक है। मीन्स ए लो वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट ए फास्ट रिस्पॉन्स एंड हाई वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट रिप्रेजेंट ए स्लगिश रिस्पॉन्स। समझ में आ रहा है? जितना कम टाइम है उसका मतलब क्या पता चल रहा है? फास्ट रिस्पॉन्स। मतलब क्या समझ रहे हैं कि ए लो वैल्यू, बेसिक मीनिंग को जानना जरूरी है कि टाइम कांस्टेंट का मतलब है क्या। टाउ इजिकल टू आर सी, टाउ इजिकल टू एल वाई आर पढ़ते रहे हो, लेकिन क्या है इसका मीनिंग, क्या है हम लोग का इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो बेसिक मीनिंग को जानना बहुत जरूरी है। सो ए लो वैल्यू ऑफ time constant represents a fast response, कम रहेगा तो ज्यादा फास्ट, and a high value of time constant represent sluggish response, slow, sluggish रिस्पॉन्स। तो ये हम लोगों ने समझा जो बेसिक मीनिंग है टाइम कांस्टेंट आरएल सर्किट के लिए। लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स, बाय अप्लाइंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म्स हम लोगों ने कैसे यहाँ पर केवीएल और कैसे लैपलेस ट्रांसफॉर्म का जो सिंपल सा हम लोग का थ्योरम है उसको अप्लाई करके हम लोगों ने एक एक्सप्रेशंस को निकाला करंट के फॉर्म में, और ये हम लोग का टाइम कांस्टेंट उसका जो क्या है एडवांटेज उसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा होगा सबको कि इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। So next, just a minute. मोहम्मद अबीर, क्लियर है? यस सर। क्लियर है, समझ में आया है यस अभी? बेसिक मीनिंग ये सब सारा चीज क्लियर हुआ ना? ठीक है। यस सर। सो आरएल के लिए हम लोगों ने समझा कि स्टेप इनपुट पे क्या हो रहा है। तो सिमिलरली यदि हम लोग आरसी सीरीज सर्किट के लिए करते हैं और स्टेप इनपुट देते हैं तो क्या होता है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आरसी सीरीज सर्किट विथ स्टेप इनपुट। RC series circuit with step input. Step input. Circuit तो simple, R C. This is simple switch. This is VT. Current. This is R. This is C. So similarly again, now apply KVL. By simply apply KVL. So you know that RIT. Okay. Now this is the capacitor. The capacitor के अक्रॉस में क्या बताए थे? 1/C 0 से T IT dt वोल्टेज, ठीक है, इज इक्वल टू V स्टेप इनपुट UT। ये सब एक्सप्रेशंस लिखने के लिए आना चाहिए, ठीक है। सो नाउ टेकिंग द लैपलेस ट्रांसफॉर्म, टेकिंग लैपलेस ट्रांसफॉर्म। सो इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म आप पता है, सबको पता है इंटीग्रेशन के लिए क्या लिखते थे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लास्ट क्लास पढ़ाया हूँ सबको थोड़ा सा देखना होगा, सारे फॉर्मूला को समझना होगा, ठीक है, तभी जाकर के क्लियर होगा सारा चीज। तो ठीक है, करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर यदि हम लैपलेस ट्रांसफॉर्म यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो व्हाट विल हैपन इज सिंपली अगेन दैट इज RIS, okay, plus 1/C
आई एस डिवाइडेड बाय एस, ठीक है। और यहां पर क्या होगा कि आई नॉट, सो आई नॉट बेसिकली जब भी हम लोग करंट इनिशियल कंडीशंस में बात करते हैं 0 से आई टी dt, तो वो चार्ज, यहाँ पर कैपेसिटर का क्या बात करें, यहाँ पर कैपेसिटर का इनिशियल चार्ज हो रहा है। कैपेसिटर क्या हो रहा है यहाँ पर, जब हम लोग कैपेसिटेंस में कोई भी हम लोग करंट चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, अप्लाई कोई भी करंट अप्लाई कर, कैपेसिटर विल बी चार्ज, ठीक है। सो यहाँ पर आर आई एस 1/c आई टी, ये इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला हम लोग बेसिक लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, आई एस बाई एस हो जाएगा और प्लस जो इनिशियल कंडीशंस के लिए है आई जीरो बाई एस। क्लियर? नाउ दिस वन v बाई एस, दिस वन व्हाट v बाई एस। अब ये I0, व्हाट इज हियर I0? सो I0 इंडिकेट द करंट इन द सर्किट इन इनिशियल कंडीशन। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, व्हाट इज दिस I0? सो I0 indicates the current in the circuit in initial condition, when इसको समझना होगा खाली, I नॉट इक्वल टू ये Q नॉट इनिशियल चार्ज के बराबर कैपेसिटर। सो तो यहां पर हम लोग ये जो एक्सप्रेशंस है इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, सिंपल वे। सो यहाँ पर इसको यदि हम लोग फाइनली सिंप्लीफाई कर देते हैं, सो आर आई एस प्लस 1/c आई एस बाय एस प्लस, इसको हम लोग क्यू नॉट तो लिख सकते हैं, क्यू नॉट बाय एस इज इक्वल टू v बाई एस, v बाई एस। ओके, तो अब इसको फिर से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। फिर से एक्सप्रेशन निकालेंगे हम लोग करंट का। सो करंट का एक्सप्रेशन हम लोग यहाँ पर निकालते हैं, आईएस को निकालना होगा यहाँ से, ठीक है। आईएस को यहाँ से हम लोग निकालते हैं, तो आईएस को निकालते हैं, आईएस को निकालेंगे कैसे देखते हैं। यहाँ पर इनिशियल कंडीशंस के लिए हम लोग लिखते हैं, ठीक है, आईएस निकालते हैं। सो आईएस इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या निकल जाएगा, v बाई एस उधर चल जाएगा। सो आईएस जब निकालते हैं तो निकल जाएगा यहाँ पर एक मिनट, आर प्लस सी एस 1/CS, ठीक है, आई एस, ठीक है, इजिकल टू v बाई एस माइनस यू नॉट बाई सी एस। एक्सप्रेशन को चेक करते रहो, कुछ गलती हो तो बताना। तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ से आई एस निकालते हैं, आई एस इजिकल टू वी एस, ठीक है, v माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एस यहाँ से आर प्लस सी एस, सो आर प्लस 1/CS, सी एस एस को कॉमन निकाल देते हैं। सो v माइनस यू नॉट बाई सी एस आर प्लस 1/CS, ठीक है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। और फिर इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आर को, सो v माइनस यू नॉट बाई सी, ध्यान देना ये 1/R एस प्लस 1/RC, ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, RC से यहाँ पर निकालने आर को। सो ये IS को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं ना, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आप इनवर्स टेकिंग द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो क्या होगा इसका फाइनल एक्सप्रेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, टेकिंग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है। सो टेकिंग इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, तो नाउ दिस इज द IT हो जाएगा, IT इज इक्वल टू, देखो मैं अब मैं जो है कि डायरेक्ट निकाल दे रहा हूँ, बहुत इजी हो गया। v बाई आर लिख सकते हैं इसको, v बाई आर माइनस क्यू नॉट
आर सी, और इसका हो जाएगा ई माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, देख लो इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म यदि यहाँ पर हम लोग लगाते हैं तो यही आएगा, वी बाई आर क्यू नॉट आर सी माइनस टाउ बाई आर सी। और यदि हम लोग क्यू नॉट को जीरो ले लेते हैं, if q naught is equal to 0, then simply it is equal to, what is this, the it is equal to v by r e minus t by rc. Okay, t by rc. So here again this rc को हम लोग क्या कहेंगे, tau. This is the time constant. This is tau is time constant. This tau is time constant. Here now the quantity RC means tau is equal to RC. This is known as the time constant. Known as time constant. Time constant. Okay. So IT is equal to V by R E minus T by tau. Okay, T by tau. So this is the charging current, means a transient current here. Response V by R E minus T by tau. This is the transient part of the current response. What is this? This is the transient part of the current response. Simple way. Now, if we substitute here T is equal to tau, T is equal to tau, then E minus 1, then what is here? Suppose put T is equal to tau, then what is here? IT. See here, IT is equal to T by tau, means V by R, E minus 1. So E minus 1 value is 0.37 like that. So 0.37 V by R. Okay. So in simple way, that is I is equal to 0.37 IS. मीन्स हम लोग टाइम कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? 0.37%. It is the time in which the current decay to 37% of its final value. सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं कि इट इज, टाइम कांस्टेंट क्या है कि इट इज द टाइम टेकन या it is the time taken in which the current decay to 37% of its initial value. Clear? Okay, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और टाइम कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया कि रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स इन ए सर्किट, स्पीड ऑफ द रिस्पॉन्स इन ए सर्किट। ठीक है, तो देखो आज से जो हम लोगों ने आज डिस्कस किया, तो इस ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट लैप्लास ट्रांसफॉर्म में हम लोगों ने आरएल सीरीज सर्किट स्टेप इनपुट को समझा, क्या टाइम कांस्टेंट का बेसिक मीनिंग होता है इसको हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो आरसी के लिए समझ लिया, तो ठीक है, आप जो है कि अब नेक्स्ट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम अब 2-3 मिनट ही बचा है। ठीक है ना, तो तुम लोग जो है कि यहाँ तक समझ गए तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में कोई डाउट रहेगा तो फिर हम लोग क्लियर कर लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तक जो है कि समझ लो अच्छे से, और कुछ भी डाउट रहेगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।